Assalamu alaikum. Today I am ready with another lesson plan, that is 5E based lesson plan, and this time I have chosen this topic from social studies 7th class, and hope this lesson plan will help our teachers in making their own lessons and dealing with the tough situations in real classroom situations. So hope you will like this video and hope you will share this video with your teachers, with your students, and do subscribe our channel for more such lesson plans. And let's start. So this is the lesson plan which I am going to share with you. That's 5E lesson plan, and you can see it is 3D in form. And let's start. So we are going to start with 5E lesson plan, 5E's. As I have mentioned earlier that 5E's, these are based on 5E's, that is engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. So we are discussing these 5E's with you. So I have chosen a lesson from social studies, and first I am going to start with date. So you can mention the date accordingly, and the class, that is 7th, and subject, that is social studies. And there are 3 subjects in social studies, that is history, geography, and civics. And I am taking the lesson from history subject, and topic, that is Taj Mahal, and time duration, that is 40 minutes. So the first thing I'm going to share with you, that is what the learners already know. So in this very first step, we are checking the previous knowledge of the students. We try to gather information from the students about the topic, what kind of information they have with them. So for that, I'm going to ask some questions. A teacher can ask some questions like these type of questions, like name any famous building or place which you have recently seen. Okay. So second question, you can ask the students like which is your favorite place. Okay. Have you ever visited Delhi? So these kind of questions you can frame to check the previous knowledge of the students. So after this step, I have another step in this 5E lesson plan, that is learning outcome. Okay. So I have set a learning outcome for this topic. मैंने यहाँ पे अपने टॉपिक के लिए एक लर्निंग आउटकम सेट किया हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ. That is, the learner describes distinctive developments in style and technology used for construction of monuments in reference with Taj Mahal made by Mughal Emperor during medieval period. So this is my learning outcome for my this topic. So ये मेरा learning outcome रहेगा इस टॉपिक के लिए. So आपका जो भी टॉपिक है आप accordingly learning आउटकम सेट करेंगे. सो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट दैट्स माय नेक्स्ट स्टेप इन माय लेसन प्लान, दैट इज लर्निंग रिसोर्सेज. लर्निंग रिसोर्स, दैट इज द TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विच यू आर गोइंग टू यूज टू प्रेजेंट योर टॉपिक. जो आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हो, लर्निंग रिसोर्सेज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. मैं यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ले रहा हूँ. मैंने मोबाइल फोन ले रहा हूँ फॉर शोइंग सम पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑफ ताज महल जो मुझे चाहिए. और मैं यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया शोइंग आगरा वेयर ताज महल इज कंस्ट्रक्टेड और लोकेटेड. ओके, मैं यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया भी यूज कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे मॉडल ऑफ ताज महल अगर मुझे मिले, ठीक है, तो वो भी मैं, आप पिक्चर भी दिखा सकते हो. अगर आपके पास मॉडल भी है ताजमहल का 3D मॉडल, तो वो भी आप दिखा सकते हो. दैट विल बी मच बेटर. सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक और लर्निंग रिसोर्स, दैट इज पिक्चर्स ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां एंड मुमताज महल. ओके, अगर आपके पास शाहजहां, या आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, आप उसके पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो और बच्चों को दिखा सकते हो. सो लर्निंग रिसोर्सेज के बाद मेरा जो है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम अप करना या यहाँ पे सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं. सो मैंने यहाँ पे 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं. पहला मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम द मुगल एम्परर हु बिल्ट फेमस ताजमहल एंड द प्लेस वेयर ताजमहल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड. ओके, तो ये यहाँ मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव. दूसरा मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा स्टूडेंट
student will be able to know about medieval period के बारे में ये जानेगा, and student will be able to know about Mughal dynasty. Okay, so ये मेरे 3 learning objectives रहेंगे इस टॉपिक को लेके. So उसके बाद जो है हमारा जो है 5 E's का काम शुरू हो जाता है. तो 5 E's का यहाँ पे फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए है, टीचर याद रखेगा और अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स को लेके वो 5 E's पे काम करेगा. लाइक मेरा पहला है एंगेज में यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक्टिविटीज विच विल फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड एक्सेस प्रियर नॉलेज, that's previous knowledge, and provide students with a reason to explore. That is the first foremost thing which a teacher has to keep in mind while framing up the lesson plan that's based on 5E or engage. Okay, so second one is that is connections, facilitates between what students know and what they can do, and the third part is that is motivate the students to learn by making them curious. So ये 3 points को लेके टीचर जो है वो एंगेज पे काम करेगा. एंगेज का मतलब ये कि स्टूडेंट, ये टीचर कैसे बच्चों को एंगेज करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको क्यूरियस बनाएगा कि वो इसका लेसन अच्छे से पढ़े और अच्छे से इसको कर पाए. सो यहाँ पे एंगेज में मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट, जो हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है लेसन का, वो मैं बताने जा रहा हूँ. ये ऐसे शुरुआत करेगा लाइक डियर स्टूडेंट्स, होप all are good, okay, and healthy. Before starting today's topic, I want to ask you something. Are you ready? ऐसे टीचर स्टार्ट करेगा क्योंकि इनको बच्चों को एंगेज करना है. तो एंगेज कैसे करेगा? सो ऐसे करेगा. तो स्टूडेंट बोलेंगे यस सर, वी आर रेडी. हियर टीचर विल स्टार्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू नो और चेक देयर प्रियर नॉलेज. जो भी मैंने पहले वो क्वेश्चंस प्रीवियस नॉलेज में आपको दिखाए थे ये वाले, तो यहाँ पे ये टीचर ये क्वेश्चंस बोलेगा, बेटा नेम एनी फेमस बिल्डिंग और प्लेस वेयर यू हैव रिसेंटली सीन. आप गए हो कभी? तो आप मुझे कोई फेमस बिल्डिंग्स के नाम बताओ. विच इज योर फेवरेट प्लेस? बेटा आप मुझे अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में बताओ. हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली? आप दिल्ली गए हो कभी? आप बॉम्बे गए हो कभी? आप गुजरात गए हो कभी? तो स्टूडेंट अकॉर्डिंगली जवाब देगा. सो आफ्टर आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन जब बताएगा तो यहाँ पे बोलेगा डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. आप तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बहुत ही काबिल हो, एंड यू आंसर्ड मी सो नाइसली. नाउ आई विल शो यू समथिंग. मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ ऑन माई मोबाइल फोन. सो आर यू रेडी टू सी? ठीक है, तो स्टूडेंट बोलेंगे यस सर, व्हाई नॉट, वी आर रेडी. टीचर विल शो देम सम वीडियोस, फोटोज ऑफ ताजमहल, सो दैट स्टूडेंट्स विल गेट द कंसेप्ट ऑफ टॉपिक एंड दे विल एक्सप्लोर देयर नॉलेज आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज एंड इमेज. ओके, तो यहाँ पे टीचर इनको वीडियो दिखाएगा, इमेज दिखाएगा, तो उसके बाद जो है बच्चे अच्छे से जानेंगे. तो वॉच करने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद, इमेज को देखने के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आएगा. लेकिन यहाँ से उससे पहले मैंने एक नोट लिखा है, हियर द टीचर इज एंगेजिंग द चिल्ड्रन. जैसे में हम एंगेज पे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर बच्चों को एंगेज ही कर रहा है एंड मोटिवेटिंग देम टू नो एंड लर्न बाय मेकिंग देम क्यूरियस. उनको क्यूरियस बना रहा है कि आगे आपको क्या करना है. So I have prepared a video which you can show to the students in order to engage them. So let's have a look. Okay? तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जो आप बच्चों को यहाँ पे दिखा सकते हो ताकि वो क्यूरियस हो जाए आगे बढ़ने के लिए. Okay? Are you ready? So let's have a look. Dear children, India is rich in many things, including buildings, forts, palaces, and monuments. Some of the monuments include Taj Mahal, Golden Temple, Qutub Minar, Lotus Temple, Gateway of India, Red Fort, and India Gate. India is a vast country, so is its culture and heritage. India is a wonderful country, and the seventh wonder of the world can be seen in India. Yes, it's the famous, beautiful Taj Mahal. Some of the beautiful monuments like Jama Masjid Delhi, Red Fort of Delhi, and the famous Taj Mahal is made by famous Mughal Emperor Shah Jahan.
सो ये वीडियो देखने के बाद जो है हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दैट इज एक्सप्लोर। एक्सप्लोर हमारा ई का 5E का दूसरा पॉइंट आता है। सो यहाँ पे भी फॉर द टीचर के लिए पॉइंट्स है, वो इन पॉइंट्स को लेके यहाँ पे आगे बढ़ेगा। ओके, इस पे काम करेगा एक्सप्लोर पे। लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना आर एक्सप्लोर्ड। ओके, यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज विद गाइडेंस, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है एक्टिविटीज विच गिव स्टूडेंट्स टाइम टू थिंक एंड इन्वेस्टिगेट, टेस्ट, मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लोर में करेंगे जो बच्चों को टाइम देगा उन सोचने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मेक डिसीजन लेने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके लिए वो तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे और एक्सप्लोर पे काम करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे रखा है। हियर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो and seeing photographs, the teacher will have a short conversation with the students about the video. ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा टीचर, ये वीडियो दिखाने के बाद, फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद उनके साथ बातचीत करेगा। बातचीत क्या करेगा, ही विल आस्क सम क्वेश्चंस, लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक बेटा व्हाट डिड यू सी इन द वीडियो, आपने वीडियो में क्या देखा, विच थिंग्स यू लाइक इन द वीडियो, आपको वीडियो में कौन सी चीज़ें पसंद आई, डू यू रियली लाइक द वीडियोस, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया। सो बच्चे आंसर देंगे येस, नो, ऐसे आ गया, वैसे आ गया, तो अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ेंगे। सो आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टीचर विल डिवाइड द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेगा एंड विल आस्क देम टू राइट डाउन एंड कलेक्ट all information about what they have seen and observed in the video. The students will work in groups and teacher will be the facilitator. तो यहाँ पे क्या करेगा, बच्चे ग्रुप्स में बैठ के एक दूसरे के साथ बात करके सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखेगा या कलेक्ट करेगा। ओके, सो टीचर यहाँ पे इनको फैसिलिटेट करेगा। नोट यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी नोट लिखा है, हियर द टीचर इज गिविंग स्टूडेंट्स एनफ टाइम टू थिंक अबाउट, इन्वेस्टिगेट important things related to the topic. Here the students are exploring and generating some new ideas. Okay, यहाँ पे बच्चे कुछ न्यू आइडियाज जनरेट कर रहे हैं वो वीडियोस के बाद, क्योंकि वीडियो जो आपने दिखाया था वो टॉपिक के रिलेटेड ही था और उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप फिनिश करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा एक्सप्लेन आता है, तो एक्सप्लेन में भी मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर द टीचर एक्टिविटीज विच अलो स्टूडेंट्स टू एनालाइज और इट ऑकर्स इन 2 points। ओके, जो स्टूडेंट्स को एनालाइज करने में मदद करता है वो एक्टिविटीज, इट ऑकर्स इन 2 points। 2 points में क्या क्या आपको आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है दैट स्टूडेंट्स फर्स्ट are given opportunity to formalize and share the understanding generated in the explore. Okay, तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको मौका दिया जाता है कि वो शेयर करें उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी एक्सप्लोर में, एक्सप्लोर जो आपने उन्होंने किया था, एक्सप्लेन में वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर टीचर्स क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट को ही चांस दिया जाता है, उसके बाद टीचर्स का काम होता है, देन द टीचर्स यूजेस स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन, कि मतलब स्टूडेंट ने ही क्या एक्सप्लेन किया है। पहले तो स्टूडेंट को मौका दिया जाता है एक्सप्लेन में, कि उन्होंने एक्सप्लोर में उनमें हमने उनको चांस दिया था, अपॉर्चुनिटी टाइम दिया था, उन्होंने कौन से क्रिएशंस किए थे। तो एक्सप्लेन में फिर जब उनको बुलाया जाता है तो पहले स्टूडेंट को ही चांस दिया जाता है कि वो क्या नई चीज़ डाल रहे हैं, वो क्या हमको बता रहे हैं। और जब टीचर्स फिर उसको मतलब इंटरप्ट करते हैं, टीचर्स को चांस दिया जाता है, देन द टीचर्स यूज स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन एंड refine their new conceptual understanding by directing attention to important elements, clarifying wherever needed। कि जहाँ पे भी रह जाता है, जो चीज़ रह जाती है वो टीचर यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी क्लैरिफिकेशन करता है और उसको नई अंदाज में स्टूडेंट्स के सामने रखता है। तो यहाँ पे टीचर पोजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करता है टीचर, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछता है, लाइक व्हाई इज दिस सो, हाउ डू यू दिस सो, व्हाई डू यू एज्यूम सो, ऐसे हायर ऑर्डर क्वेश्चंस वो पूछता है। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रखा है आपके लिए। आफ्टर फिनिशिंग द टीचर विल इनवाइट ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो मैंने ग्रुप्स को डिवाइड किया था, सो उसके बाद टीचर क्या करेगा, उनको इनवाइट करेगा स्टेज पे एंड विल टेल देम टू
formalize and share their understanding and finding generated in the explore में जो भी उन्होंने डिस्कस किया वो अभी एक एक करके ग्रुप्स में वो यहाँ पे आगे जाके वो शेयर करे अपने peer groups के साथ या अपनी बाकी ग्रुप्स के साथ. Each group will explain their findings. After finishing, the teacher will use their explanation by directing attention to important elements. He will explain the things more clearly. तो जब बच्चे पहले आएंगे तो उसके बाद टीचर इंटरप्ट करेगा और टीचर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा. तो उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है elaborate यहाँ पे मैंने लिखा है for the teacher एक और बार activities which allow students to apply concepts and build or extend their understanding and skills to the real world situation or investigate. इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं. Activities allow students to apply concepts and build or extend their understanding and skills to the real world situation. इसमें वो investigate करता है, वो activities उनको देने हैं जो उनको उनकी concepts build करने में मदद करेगा, उनकी understanding clear हो जाएगी. यहाँ पे मैंने लिखा है student will develop sophisticated understanding of the concept. यहाँ पे मैंने practical demonstration भी इस point का लिखा है. Yet the teacher will elaborate his lesson by presenting his topic in a nice way. Okay. और इलाबरेट में वो क्या करेगा कि जो भी उसका अपना प्रेजेंटेशन है उसको वो कैसे क्लियरली बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा सो दैट स्टूडेंट विल डेवलप द सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. टॉपिक के बारे में उनको कैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ही कैन यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने पहले भी रिसोर्सेज कौन से लर्निंग रिसोर्सेज लाइक मोबाइल फोन्स, लाइक मैप्स, लाइक फोटोग्राफ्स वो कैसे करेगा, लाइक 3D जो चीज़ें हैं वो कैसे यूज़ करेगा, एंड मेथड्स वो कैसे इस्तेमाल करेगा, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेगा, स्टोरी टेलिंग मेथड कैसे यूज़ करेगा टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली. लेट मी शो यू अ वीडियो. यू कैन मेक द सेम और यूज इट इन द एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन. लेट्स गो सो दैट इलॉबरेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. तो हम ये वीडियो देख लेते हैं फटाफट. Topic Taj Mahal, Class 7, Subject Social Studies. The Taj Mahal is located on the right bank of the Yamuna River in a vast Mughal garden that encompasses nearly 17 hectares in the Agra district of Uttar Pradesh. It was built by Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal, with construction started in 1632 AD and completed in 1648 AD. With the beautiful mosque, the guest house, and the main gateway on the south. For its construction, masons, stone cutters, inlayers, carvers, painters, calligraphers, dome builders, and other artisans were requisitioned from whole empire and also from Central Asia and Iran. Ustad Ahmad Lahori was the main architect of the Taj Mahal. The Taj Mahal is considered to be the greatest architectural achievement in the whole range of Indo-Islamic architecture. The Taj Mahal is the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world heritage. Everyone is a wish to visit it once. Thank you. तो उसके बाद फाइनल में हमारा आ जाता है एक और फिफ्थ वाला ई, दैट इज इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मैंने और टीचर के लिए लिखा. फॉर द टीचर, हाउ विल स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव अचीव्ड द लेसन्स ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे असेसमेंट आपको ऐसे करना है, इवैल्यूएशन आपको कैसे करना है कि स्टूडेंट कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा दैट दे हैव अचीव्ड, कि उन्होंने लेसन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हुए हैं. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन बी गिवन अ समरेटिव असेसमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो अबाउट एंड what they can do. Let's practical demonstration. Here the teacher will call the students for an activity. तो यहाँ पे थ्रू एक्टिविटी आपको मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ. इससे आपका इवैल्यूएशन पार्ट आपका आ जाता है, असेसमेंट पार्ट आपका स्टूडेंट्स का आ जाता है, और खेल खेल में बच्चे आंसर भी दे देते हैं. लाइक नेम ऑफ द एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है उसका नाम है पिक एंड आंसर. ओके, ये मैंने खुद की क्रिएशन की हुई है एक्टिविटी. तो पिक एंड आंसर. तो यहाँ पे ये कैसे एक्टिविटी करेगा. टीचर विल मेक सम कार्ड्स एंड विल राइट सम वर्ड्स, क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स
on each card. Okay, teacher will make a box and will put these cards in the box. Then the teacher will call each student to pick up the card and answer accordingly. So यहाँ पे आपको क्या करना है, टीचर क्या करेगा, टीचर कुछ कार्ड्स बनाएगा, कार्ड्स पे वो एक कार्ड पे लाइक क्वेश्चंस लिखेगा, एक कार्ड पे वर्ड्स लिखेगा, एक कार्ड पे स्टेटमेंट्स लिखेगा, एक कार्ड पे कुछ और जैसे ट्रू फॉल्स है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऐसे ऐसे करके कार्ड्स, डिफरेंट कार्ड्स बनाएगा. वो कार्ड्स को बॉक्स में डालेगा और बॉक्स में से एक एक स्टूडेंट को उठाएगा और स्टूडेंट पिक करेगा कार्ड, और कार्ड पे जो भी लिखा होगा उसके बारे में टीचर उनको इवैल्यूएट करेगा. लाइक मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, पिक एंड आंसर एक्टिविटी. ये मैंने पूरा बैग लिया हुआ है, बॉक्स नहीं लिया हुआ है. बैग, आप बैग भी ले सकते हैं, बॉक्स भी ले सकते हैं. तो इसमें मैंने बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं. जैसे मैंने इस पे लिखा है शाहजहां एंड मुमताज़, ये वर्ड्स है. लाइक मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, आगरा इज द सिटी विच इज इन राजस्थान. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो टीचर बोले ये मैंने गलत लिखा है, तो आप अकॉर्डिंगली बच्चे को असेसमेंट कर सकते हो. तो मैंने एक और कार्ड बनाया, लाइक वेयर इज ताजमहल लोकेटेड. ये क्वेश्चन है, लाइक मैंने बोला था क्वेश्चंस लिखेगा, स्टेटमेंट्स लिखेगा, वर्ड्स लिखेगा. तो अकॉर्डिंगली जब बच्चा एक एक करके ये चीट उठाएगा, कार्ड उठाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, बच्चा आंसर देगा. सो नोट, दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू चेक द स्टूडेंट्स अचीवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी असेसमेंट करने से, इवैल्यूएशन करने से टीचर देखेगा कि मेरे बच्चे का अचीवमेंट कितना है. So teacher will also ask some questions in order to demonstrate what students know and what students can do. Like as usual questions वो पूछ सकता है, who built Taj Mahal, किसने बनाया, where and in which city the famous Taj Mahal is located, like which river flows besides the famous Taj Mahal. Okay, like everyone love to visit the famous city Gujarat to see Taj Mahal. Is it true or false? Okay, ये मैंने गलत लिखा है, तो बच्चा बोलेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो ताजमहल इज मेड विद डैश डैश, मार्बल से बना है, ब्रिक से बना है, ब्लैक स्टोन से बना है. तो ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे इवैल्यूएशन आप बच्चों को कर सकते हो. सो उसके बाद जो है, जब ये हमारा ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम होमवर्क देते हैं, लाइक ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ताजमहल एट होम, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ताजमहल. सो जब आप बोलेंगे कि राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ताजमहल, दैट मीन्स कि हम उसको, इस SST को इंटीग्रेट कर रहे हैं लैंग्वेज के साथ. इंग्लिश में वो लिखेगा तो एक कंपोजिशन, एक सेंटेंसेस लिखेगा, वो एक पैराग्राफ लिखा है, तो दैट मीन्स हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. So this is all about this 5E lesson plan. So hope आपको ये 5E lesson plan अच्छा लगा होगा. आप इसको अपनी बाकी टीचर्स के साथ भी शेयर करें, और इंशाल्लाह और मिलेंगे एक और लेसन प्लान के साथ. टिल देन अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.